جا کر بات کی ہے اور اس حلف کے ساتھ کہ ہم اس بات کو ڈسکلوز نہیں کریں گے کہ آپ نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہیں، اور انہوں نے جو ان کو باتیں بتائی وہ بڑی ہوشربا ہے اور وہ ایسی باتیں ہیں جو اس بات کو کنفرم بھی کری ہیں کہ اس کی پرنسپل نے وہاں پر موجود گارڈ سے یہ کہا کہ اب تو سب کچھ ہو گیا، کھلے عام ریپ کرو ان کو۔ بچوں کو 4 گھنٹے سے زیادہ لاک کیا گیا، کلاس رومز میں بھی لاک کیا گیا، واش رومز میں بھی لاک کیا گیا، تھریٹ کیا گیا۔ بچوں کو ٹیچرز نے تھپڑ مارے بچیوں کے منہ پر، گارڈز کو کہا کہ مارو ان کو، گارڈز نے تھپڑ مارے۔ کچھ بچیوں کے کپڑے، اس میں یہ بچوں نے بتایا، میں حلفاً آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ بچیوں کے کپڑے پھٹ گئے جب گارڈز ان پہ یہ تشدد کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، جو واقعہ پیش آیا لاہور میں بہت ہی تکلیف دہ ہے، جہاں پر پنجاب کالج کی جو بچی ہے، مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی کالج میں، اور اس کے بعد اس کی حالت جو ہے وہ بہت خراب تھی، آئی سی یو میں اس کو شفٹ کیا گیا، اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی، اسٹوڈنٹس کے بیانات کے ساتھ، اور جو چیزیں میرے ساتھ بچوں نے شیئر کی وہ سب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ لیکن اب میں بات اس سے آگے کی کرنے جا رہی ہوں۔ اس وقت میرے ساتھ کچھ ٹیچرز اور کچھ کالج کا آپ کہہ لیجیے اسٹاف میرے ساتھ رابطے میں ہے، جن کو یہ کہا گیا ہے کہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنی، لیکن آن پرسنل لیول انہوں نے مجھ سے کچھ باتیں شیئر کی ہیں، اور کچھ ایسے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جن کو دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کو میں کہاں سے شروع کروں۔ جہاں پر ایک پولیس کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، وہ آ کر یہ بیان دیتے ہیں کہ جی کوئی کلیمنٹ سامنے نہیں آیا، کوئی بچی کے والدین نے کوئی درخواست نہیں کرائی، اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہم ضرور اس کو ایڈریس کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ریومرز ہیں۔ تو ایٹ دا سیم ٹائم وزیر تعلیم جو کہ اس گورنمنٹ کا حصہ ہے، وہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ سب کچھ ہوا ہے، اور جو فوٹیجز ہیں ان کے ساتھ انہیں مینیپولیٹ کیا گیا ہے، اور وہ فوٹیجز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کی گئی ہیں، کچھ چیزیں بیچ میں مشکوک ہیں، بچی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور جو کچھ بھی چیزیں ہیں اگر کلیئر نہیں ہیں، اگر ہو جاتی ہیں تو ہم اس معاملے کو بہت سیریسلی لیں گے، یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد بچی کے والد کا سامنے آنا، بچی کے والد نے کیا بیان دیا، ذرا یہ پہلے سنیے گا۔ آج جو لاہور کالج میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے لیے سوشل میڈیا پہ کافی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں۔ اس میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مطلب ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے اس میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری بچی گھر پہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ گری ہیں، تو ان کو بیک بون پہ چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ آئی سی یو میں گئی ہیں، لیکن میڈیکل رپورٹس وغیرہ ساری چیزیں ہم نے ان کو دے دی ہیں۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ مکمل طور پہ وہ 7 دن ایڈمٹ رہی ہیں۔ آپ کو کیسا لگتا ہے جب کسی بھی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے اور بلا وجہ کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں؟ بس یہ ہے کہ جن کی بیٹیاں ہیں وہ کم از کم یہ پین کو نا فیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں جب سے یہ اپنے ویڈیو دیکھی ہمیں تو خود اس چیز پہ ہوا ہے کہ دیکھ کے ویڈیو دیکھ کے پریشان ہو گئے ہیں کہ ہماری بچی کا نام اس میں لیا جا رہا ہے، حالانکہ بچی ہمارے گھر پہ ہے، کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اسے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس پہ مطلب وہ ہمیں اس چیز پہ ہے کہ کم از کم ان کی بھی مائیں بہنیں گھر۔ یہ جو وہ بچی ہے جس کے بارے میں ابھی تک کلیم کیا جا رہا تھا کہ یہ بچی جو ہے یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اور اس کے والد نے آ کر کہا کہ خدا کے لیے ایسے نہ کرے، میری بچی جو ہے وہ سیڑھیوں سے گری ہے اور زخمی ہے، اور اس وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ہے، اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ چلیے یہاں پہ ہم ایک مارجن دے دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی وہ ہیں کہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے کچھ وہ چیزیں معلوم ہیں جن کو میں یہاں ڈسکلوز نہیں کر سکتی ہوں۔ اب وہاں پر وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بچی نہیں ہے تو چلے مان لیا آپ کی بچی نہیں ہے، لیکن کوئی تو ہے جس کے بارے میں کچھ ایسی فوٹیجز، کچھ ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جو لوگ جو ہیں ابھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، بلکہ یہ فوٹیجز ویڈیوز ڈیلیٹ کروائی گئی۔ اس کے بعد کچھ ایسی آڈیوز جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جہاں پہ اسٹاف ممبرز بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اور وہاں پر وہ آڈیوز جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، جس پر مجھے بہت حیرت ہے کہ اسٹاف جو اس کی خاموشی ہے، اور میں اسے کہوں گی قاتلانہ خاموشی ہے، ایک ایسی خاموشی ہے جس پر شاید آپ کو کل کو جواب بھی دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سب کو ہی ایک ہی لاٹھی سے ہانکے، لیکن جہاں پر ذمہ داری بنتی تھی آپ نے غلط اس کا ثبوت دیا ہے، ذمہ داری کو ٹھیک سے ادا نہیں کیا ہے، آپ اس کو سزا دیتے، سزاوار کو سامنے لے کر آتے، آپ کے ادارے میں اگر ایک چیز ہوئی ہے تو اس کو سامنے آنا چاہیے۔ لیکن اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے ملک میں آج تک ہوتا آیا ہے
वो सब कुछ आपके सामने है, जहाँ पर एक बाप और भाई मिलकर अपनी बहन और बेटी को कत्ल कर देते हैं, और वो बेटा जो है वो गाड़ी में बैठकर इकरार करता है इस बात का कि हाँ मैंने ऐसे किया, लेकिन उसके बाद उसको बेकसूर करार दिया जाता है और कहा जाता है कि उसने ऐसा नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि हमारी इज़्ज़त ख़राब ना हो, सिर्फ इसलिए कि दुनिया में हमारी जगह हसाई ना हो। ये क्या बातें हैं, ये क्यों है ये सब कुछ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, अब मैं ज़रा आगे आ जाती हूँ, इस बात से भी आगे ज़रा मैं आपको ज़रा मुख्तसर से सुनाती हूँ वज़ीर तालीम ने क्या कहा, पुलिस का क्या बयान है, और उसके बाद एक सहाफ़ी के कुछ इंकशाफात है, और फिर वो वीडियोज़ और ऑडियोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें ये एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ ये सब कुछ इस इदारे में हुआ है, और कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये भी ज़रा सुनिएगा। लेकिन पहले ये पुलिस का मुख्तसर सा बयान सुनिएगा। जैसे ये खबर वायरल हुई, उसके कंटेंट्स देखे गए, हमने फ़ौरन पुलिस रिकॉर्ड चेक किया, हॉस्पिटल चेक किए कि किसी भी जगह पे ऐसी किसी स्टूडेंट का या किसी फैमिली का आके रिपोर्ट करना इस इंसिडेंट को वो साबित हो जाए। किसी हॉस्पिटल में कोई इतला नहीं थी। उसके अंदर जिस गार्ड का मेंशन था, हमने फ़ौरन कॉलेज की इंतजामिया से रब्ता किया, उनसे बात की कौन कौन से उनके गार्ड छुट्टी पे थे। उसके अंदर मेंशन था कि एक गार्ड है जो कि कुछ दिन से गायब है। उस गार्ड को ट्रेस किया सरगोदा से, उसको हम लेके आए कि उससे सवाल जवाब करें। ये तमाम चीज़ें पुलिस ने करना शुरू कर दी, और अभी तक हम ये वेट कर रहे हैं कि कोई जो विक्टिम है, मुतासरा लड़की है या उसका ख़ानदान, को पुलिस से कांटेक्ट कर ले, जो कि अभी तक हमारे सामने नहीं आई। इसके ऊपर मैं खुद भी कॉलेज भी गया हूँ, उनके तमाम कैंपसेस पे, वो जो बच्चियों वाला कैंपस है उस पर भी गए हैं, वहाँ पे उनसे सवाल जवाब भी किए कि अगर आपके पास उस खातून की कोई इतला है, उस बच्ची की कोई इतला है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई एड्रेस है, तो वो ज़रूर बताएं। लेकिन वो ये सोशल मीडिया पे एक चलने वाली और वायरल हो जाने वाली ऐसी खबर है कि जिसके बारे में डिटेल्स किसी को भी नहीं पता। ये जी आपने सुना, अब वज़ीर तालीम क्या कह रहे हैं, ज़रा ये भी सुन लीजिए। ज्यादती वाला इंसिडेंट है, ये रिपोर्ट हुआ वो ये है कि उसमें प्रिंसिपल ने मिलके, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके वो वीडियो और ऑडियो एविडेंस ही डिलीट कर, जिसके अंदर सारे सबूत थे, उन्होंने जाके उन्होंने रिपोर्ट किया प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ने उन बच्चों की बात सुनने की बजाय उन्होंने एब्सोल्युटली साइड ली है इंतजामिया की, ना उस बच्ची की सुनी है ना स्टूडेंट्स की सुनी। जी, अब आपने सुन लिया कि वालिद क्या कह रहे हैं, वज़ीर तालीम क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रहे हैं। अब मैं ज़रा आपको बताऊं कि एक और वालिद जो है वो भी सामने आए हैं, उन्हें भी बुलाया गया, पुलिस के दफ्तर में उनको बिठाया गया, हमारी मालूमात के मुताबिक उनसे भी पूछताछ की गई, और वो जो है वो तो बिल्कुल ही वो नहीं निकले, क्योंकि उनकी तो बच्ची बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा खुदारा मेरी बेटी का नाम ना लिया जाए। लेकिन अब इस बच्ची की जो क्लास फेलोज़ है, 11वीं जमात की इस बच्ची की जो क्लास फेलोज़ है, वो भी बच्ची का नाम जो है सिगर राज में रख रही हैं, लोगों के सामने नहीं बता रही। जाहिर सी बात है, एक आपका सिस्टरहुड होता है, एक आप साथ पढ़ते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल होता है, उनको भी एहसास है। वो उस चीज़ को तो एक साइड पे रखते हुए वो ये बात मुझसे शेयर कर रही हैं कि हाँ हमारी क्लास फेलो के साथ ये हुआ है और ये बात हुई है, और हमें कहा गया है कि हमने इस पर बात नहीं करनी, लेकिन ये जुल्म हुआ है, और जुल्म के ख़िलाफ़ जो है ये आवाज़ जो है ये उठा जो रहे हैं, ये आवाज़ बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद कुछ टीचर्स हैं, 2 टीचर्स हैं जिनसे मेरा राब्ता हुआ है, मैं उनका नाम कभी नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हाँ ये वाक़या हुआ है, और बहुत सख्त एक माहौल है जिस पर कि किसी को बात करने की भी इदारे के अंदर इजाज़त नहीं है। उसके बाद उन्होंने कुछ ऑडियोज़ शेयर की हैं जो मैंने उनके फ़ोन पर सुनी है, जिसके अंदर ये बात जो है डिस्कस की जा रही है। एक जगह पे बैठ के टीचर्स और कुछ लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, और उसके अंदर भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया है। ये वो तमाम बातें हैं जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि जब एक दफ़ा एक DIG लेवल पे बंदा आके कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप डाउट में पड़ जाते हैं। इतनी बड़ी बात को इस तरह से छुपाना जो है ये भी बड़ी हिम्मत की बात है, और बहुत मैं समझती हूँ कि इसके अंदर एफ़र्ट लगानी पड़ती है। और जाहिर सी बात है, आप जितने बड़े होते हैं, जितना आपके पास पैसा होता है, जितना आपके पास इख्तियारात होते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चीज़ें जो है वो जिस तरह से मैनेज की गई हैं उस पर हमें सख्त एतराज़ है, और गुनाह को छुपाना, जुर्म को छुपाना एक बहुत बड़ा जुर्म है अपने आप में। लेकिन मैं आपको पहले भी बता दूँ कि इस केस का हल यही होगा कि आखिर में होगा कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मेरे सामने कुछ चीज़ें आई हैं, एक सहाफ़ी हैं, उनके कुछ इंकिशाफ़ात हैं, तारिक मतीन भाई हैं, उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं। कुछ बच्चों को जो कमरों में लॉक किया गया, उन्हें मारा पीटा गया, और बच्चियां जो उनको बता रही हैं वो भी ज़रा आप सुन लीजिए। मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जो मेरे साथ, क्योंकि आप दुनिया का मुंह बंद नहीं कर सकते, आप लोगों को खामोश नहीं करा सकते। ये सोशल मीडिया का टाइम है, लोगों के पास सबूत है, हाथ में मोबाइल है, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं। सुनने में तो अब ये भी आ रहा है कि अब आने वाले वक्त में बच्चों के मोबाइल्स जो है स्कूल में लाने पर बिल्कुल सख्ती होगी, पाबंदी होगी। पहले जो बच्चियां मोबाइल लेकर जाती थी, इस तरह की रिकॉर्डिंग डिवाइसेस जो है इनकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि जब एक प्रॉम्प्टर ने वो ऑडियो वीडियो शेयर की तो उसका वो फ़ोन ही तोड़ दिया गया, और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि आप जो है गलत बातें फैला रही हैं।
उसी बच्ची की क्लास की वो आप कहिए कि एक ज़माने में जिन्हें प्रीफेक्ट कहा जाता था, मॉनिटर कहा जाता था, उस क्लास की वो CR है, और उसने जो चीज़ें शेयर की हैं वो भी मेरे साथ नहीं शेयर की, प्रिंसिपल के साथ शेयर की, सुनने में आया है, और उन्होंने उसका उठाकर फ़ोन जो है वो फेंक दिया, तोड़ दिया। ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को सस्पेंड भी किया गया है और ये चीज़ें भी चल रही हैं। मेरी अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें मैं आपके साथ कोशिश करूँगी कि वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ उन लोग की इजाज़त से आपके साथ शेयर करूँ। तब आपको अंदाज़ा होगा कि अंदर खाते क्या चल रहा है। चीज़ें इतनी सादी नहीं हैं, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, और इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है कि हम अदल को, जो निज़ाम इंसाफ़ है, उसको सही से सामने नहीं लेकर आ रहे, निज़ाम इंसाफ़ को चलने नहीं दे रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये ज़रा गुफ्तगू आप जाते जाते तारिक मतीन साहब की भी सुनिएगा, आपको अंदाज़ा होगा। कुछ सहाफ़ी है, एक दो चीज़ें और भी रह गई जो मैं आपको बता दूँ। कुछ सहाफ़ी है जो फील्ड के अंदर बहुत ग्राउंडेड हैं, जो इन इदारों के साथ भी काम करते हैं और करते रहे हैं। उन्होंने जाकर कुछ लोगों के साथ पर्सनली मुलाकात की है और स्कूल टाइमिंग्स के बाद मुलाकात की है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम सहाफ़ी हम चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। और इन सहाफ़ियों ने इस स्कूल के कुछ वर्कर्स, जिनमें आपके गार्ड्स भी हो सकते हैं, आपके मुलाजमीन भी हो सकते हैं, खाकरोब भी हो सकते हैं, और टीचर्स भी हो सकते हैं, उनसे पर्सनली जाकर बात की है, और इस हल्फ के साथ कि हम इस बात को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे कि आपने हमें ये बातें बताई हैं, और उन्होंने जो उनको बातें बताई वो बड़ी होशरुबा है, और वो ऐसी बातें हैं जो इस बात को कन्फर्म भी करी हैं। वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी अगली वीडियो में, कि उस दिन क्या हुआ था, उस दिन क्या कुछ छुपाया गया और क्या कुछ बताया गया। उस हॉस्पिटल के बाहर गार्ड्स देखे गए हैं, इसी स्कूल के, इसी कॉलेज के, जो वहाँ पर मौजूद थे, उस जगह को सील कर रहे थे, और क्यों वो वहाँ पर थे, वहाँ पर उनका क्या काम था। और वही हॉस्पिटल एवर केयर हॉस्पिटल का नाम है, जिसका नाम आ रहा है, जहाँ पर बच्ची को रखा गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये सब निशानदेही कर रही हैं कि मामला जो हैं, जिस तरह बताए जा रहे हैं DIG साहब की तरफ से, या जिस तरह डिस्क्लोज़ किए जा रहे हैं, वो उस तरह नहीं है, बल्कि मामलात वो है जो सहाफ़ी अपनी काविशों से निकाल कर ला रहे हैं, और चीज़ें दे नॉट दैट सिंपल। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ दोस्तों की भी और मज़ीद इंकिशाफ़ात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये जो स्कूल की मैनेजमेंट की जानिब से बच्चों को, उनके वालिदैन को थ्रेट करने की बात है, तो मुझे ये लगा था कि जो कैंपस 10 है, इस कैंपस 10 की स्टाफ की जानिब से या प्रिंसिपल की जानिब से या जो मैनेजमेंट है यहाँ पर कुछ लोगों की जानिब से थ्रेट किया गया होगा। मैंने 3 मुख्तलिफ बच्चों से बात की है। उन बच्चों का ये कहना है कि सब थ्रेट कर रहे हैं, प्रिंसिपल, टीचर्स, एडमिन का स्टाफ, सब बच्चों को थ्रेट कर रहे हैं और बहुत बुरी तरह से थ्रेट कर रहे हैं। फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो इस कैंपस के नहीं, दीगर कैंपसेस के थे, उन्होंने भी बच्चों को, बच्चों के वालिदैन को थ्रेट किया है। और आप इंटरनेट पर, इमरान रियाज खान ने भी एक ट्वीट करके जो ऑडियो है वो ट्वीट की है, तो बाकायदा थ्रेट किया जा रहा है। एक बच्ची को, जो प्रॉक्टर है, उसको प्रिंसिपल खुद थ्रेट कर रही है और बहुत बुरी तरह से थ्रेट कर रही है। ये हुआ। जो बच्चों को सस्पेंड करने का मामला है, उसमें बच्चों ने ये बताया है कि 5000 से 5200 के दरमियान का नंबर आ रहा है बच्चों का, जिनको ऑलरेडी स्कूल के लोगों ने सस्पेंड कर दिया है। मोस्टली इनमें कैंपस 10 के बच्चे हैं और बहुत से दीगर कैंपसेस के बच्चे हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। आज जो बच्चों को कैंपसेस में, सिर्फ इस कैंपस में नहीं, दीगर जगहों पर भी लॉक किया गया, तो क्या हुआ? बच्चों को 4 घंटे से ज्यादा लॉक किया गया, क्लासरूम्स में भी लॉक किया गया, वॉशरूम्स में भी लॉक किया गया, थ्रेट किया गया। बच्चों को टीचर्स ने थप्पड़ मारे बच्चियों के मुंह पर, गार्ड्स को कहा कि मारो इनको, गार्ड्स ने थप्पड़ मारे। कुछ बच्चियों के कपड़े, इसमें ये बच्चों ने बताया, मैं हल्फन आपको बता रहा हूं, कुछ बच्चियों के कपड़े फट गए जब गार्ड्स उन पे ये तशद्दुद कर रहे थे। और एक बच्ची ने मुझे ये बताया, और बहुत ही बुरी, उसको ये अफसोस था इस बात का कि उसकी प्रिंसिपल ने वहां पर मौजूद गार्ड्स से ये कहा कि अब तो सब कुछ हो गया, खुले